dear students. Today we will discuss exercise 5.2 class 7 mathematics chapter 5 lines and angles. Okay. Previous exercise we already discussed in two different videos. Okay, that is also available on my YouTube channels. Okay, and in this video we will discuss exercise 5.2. Okay, and before starting the exercise we discuss some related things regarding this exercise, like that transversals, angle made by the transversal pair of lines. Okay, and in that one we are going to discuss corresponding angles, alternate interior angles, है ना, co-interior angle of the same side of transversal, all these things. Okay, and in previous video, that means in previous exercise we already discussed about the adjacent angles, supplementary angles, complementary angles, linear pair, है ना, all these things, vertically opposite angle also. Okay, but in this one we will discuss that there are the two pair of lines and the third lines is also there, that will be called the transversal of this one. Okay, so we will talk about all these things. So one things I want to tell you, so please watch full video for better understandings. Okay, if you are not watching full videos, means I am not giving surety to you, you are understand very well, but if you are watching whole videos, that will be understood by you very easily. Okay, so let's start this exercise. Before starting exercise 5.2, let's discuss some basic points. Okay, first one is the pair of lines. Okay, pair of lines means, you know, pair, है ना, pair means two things are there. Okay, suppose I have this one pen, so this cannot be a pair. We cannot say this is a pair. Okay, तो हम इसको पेयर नहीं बोल सकते, राइट ना, एक चीज जब होगी तो हम उसको पेयर नहीं बोल सकते. बट I bring another pen also, then I have a pair of pens. Understood? Pair means होता है दो चीजें. जब भी हम पेयर की बात करते हैं, पेयर ऑफ पीपल्स है, जो भी है, तो वहां पे दो लोग होते हैं. पेयर कभी सिंगल चीज का नहीं बनता है. तो पेयर ऑफ लाइंस का मतलब हमारे पास दो लाइन होंगी. मे बी लाइन्स ऐसे भी हो सकते हैं, मे बी लाइन्स इस तरीके से भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड ना? पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है कि दो लाइनें हमारे इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, है ना. और भी तरीका ये भी है ना. वैसे तो ये भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन तो दो ही होती है, एक होती है पैरेलल्स और एक होती है इंटरसेक्टिंग. तो यहाँ पे अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो ये पैरेलल हो जाएंगे. और अगर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी. मींस this line intersecting this at this point and this line intersecting this one at the same point. So these are the intersecting lines and these are the parallel lines. तो pair of lines का मतलब हमारे पास दो lines होंगे, ठीक, एक lines नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है. तो ये हमारे pair of lines हो जाएंगे. उसके बाद हम देखते हैं intersecting lines. तो ये हमारे intersecting lines हो गया, जैसे हम आपको बता चुके हैं. pair of lines में दो लाइन होंगी हमारे, और इंटरसेक्टिंग लाइन में हमने जैसे आपको बता दिया है, एक लाइन सपोज मान लो ऐसे है, दूसरी लाइन हो सकता है ऐसे 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 करके इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या फिर कई तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू इंटरसेक्ट ईच अदर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम्स. इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शंस. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि लाइन, टू लाइंस जिस पॉइंट पर मिलते हैं एक दूसरे से, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा. इट मींस हियर यू कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, हियर यू कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, एंड हियर यू कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट का मतलब समझ गए, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन, ट्रांसवर्सल्स. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ट्रांसवर्सल्स. तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल हमारा एक ऐसा थर्ड लाइन होता है. देखिए हमारे पास दो पेयर ऑफ लाइन्स, हमारे पास ये दो पेयर ऑफ लाइंस हैं. अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैंने आगे नहीं बनाया है, मैंने दो पेयर ऑफ लाइंस बना दिया है, ये कैसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो दीज आर द पेयर ऑफ लाइंस. अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो एक ऐसा थर्ड लाइन
एक ऐसा थर्ड लाइन जो इन दोनों लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। बात समझ में आ गई? एक ऐसा लाइन जो दोनों लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इस केस में अगर मैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। इन दिस केस दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। यहां पे अगर मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर दूं ये, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। दिस वन एंड दिस वन आर द ट्रांसवर्सल्स। दिस वन here again we draw next lines. This is not a transversal. 1 2 3 these are not a transversal. इन केस में थर्ड लाइन जो ड्रॉ किया था मैं, कौन सा थर्ड लाइन था? ये वाला, ये थर्ड लाइन था हमारा। तो ये 3 लाइंस हमने जो ड्रॉ किए थे डिफरेंट डिफरेंट, ये ट्रांसवर्सल नहीं होंगे, लेकिन ये हमारा ट्रांसवर्सल है। यस, दिस वन इज द ट्रांसवर्सल, दिस वन इज ऑल्सो, यस दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट मतलब ये लाइन हमारा ये L है और ये लाइन हमारा M है, ठीक है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल जो है L लाइन को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और M लाइन को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस transversal is a line segment which intersects a pair of lines at distinct point. Distinct point का मतलब होता है different point. A और B दो अलग अलग point हो गए. L and M are the pair of lines. Then this one is a transversal which intersect the two lines at different points or distinct point A and B. तो ये ट्रांसवर्सल हमारा हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो ये जो ट्रांसवर्सल क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइन को सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं यही लाइन अगर इसकी जगह अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं तो दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। ये देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले कि नहीं मिले, लेकिन इस पॉइंट पर ड्रॉ करने से ट्रांसवर्सल नहीं मिलेगा, यहां ट्रांसवर्सल मिल जाएगा। ये भी ट्रांसवर्सल होगा, क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट देखिए ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ट्रांसवर्सल अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसवर्सल डेफिनेशन ध्यान देना, यानी ट्रांसवर्सल इज ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द गिवन ऑफ लाइंस एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स और वी कैन से एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। समझ में आ गया? तो एक ऐसा लाइन जो टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्लियर है? तो अब हम आगे इसके बाद पर डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि ट्रांसवर्सल के थ्रू कौन से एंगल बनते हैं, यानी एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल्स, है ना। ट्रांसवर्सल के थ्रू कितने एंगल बनते हैं पेयर ऑफ लाइंस में? ट्रांसवर्सल हमेशा पेयर ऑफ लाइंस के साथ ही होगा। पेयर ऑफ लाइंस होंगे तो ही ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि कितने एंगल हमारे बन सकते हैं ट्रांसवर्सल की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे एक पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर ऑफ लाइंस किसी भी तरीके से हो सकता है। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब दो लाइंस होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। यहां पे हमने एक थर्ड लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये जो थर्ड लाइन है वो हमारा ट्रांसवर्सल होगा। इसको हमने बोल दिया लाइन एम एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। ठीक, ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे कितने एंगल्स बने और उनके क्या क्या नाम होते हैं तो मैं पहले इसके एक एक करके बताते चलूंगा, फिर वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इस वर्ड का तो मीनिंग पता ही होगा आपको, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। अब यहाँ पे अंदर कैसे करोगे? तो आपके पास एक क्राइटेरिया यहाँ पे कि ये दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के अंदर बीच में होगा उसको हम इंटीरियर पोर्शन कहेंगे, और इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के आउटसाइड होगा उसको हम एक्सटीरियर पोर्शन कहेंगे। क्लियर है? यानी कि ये जो दोनों लाइन है एल और एम, इसके अंदर का पोर्शन इंटीरियर और इसके बाहर का पोर्शन एक्सटीरियर। क्लियर? यानी कि ये जो लाइन है इसके बाहर एक्सटीरियर, इसके ऊपर एक्सटीरियर, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो इंटीरियर हो जाएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, है ना। तो इंटीरियर एंगल्स देखिए हमारे पास ये एंगल्स है, ये भी अंदर है, ये भी है और ये भी है। इनके हम नाम दे देंगे, है ना।
तो नाम से भी हम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी नेम अपन नेमिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया 1 2 3 4। तो इंटीरियर एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे इंटीरियर हो गए। क्लियर। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बाहर एंगल कौन से हैं, अब मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक, तो यहां से मैंने ये ड्रॉ किया, ये बाहर है, लाइंस के ऊपर है, तो ये 5 दे दिया इसको, ये हमने यहाँ पे है तो ये 6 दे दिया, ये हमने 7 दे दिया, ये हमने 8 दे दिया। आप ये नेमिंग अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं दे रहा हूं। आप चाहो तो यहां से पहले सारे एंगल बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दो, कैसे भी करके दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से स्टार्ट कर दो, इधर से स्टार्ट कर दो, इधर से स्टार्ट कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस आपको इनका नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCPQR, कुछ भी नाम दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये हमने इस तरीके से एंगल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। एक्सटीरियर का मतलब बताया था बाहर, तो 1 2 3 4 5 इंटीरियर हो गए, तो 5 6 7 8 हमारे एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस तरीके से हमारे ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। क्लियर। अब देखो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको अच्छे से समझना है। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि वो पेयर का मतलब दो एंगल होंगे, पहली बात तो ये समझ लो। पेयर जहां पे भी देखो पेयर 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 वर्ड लगा है, मतलब ये है कि यहाँ पे दो दो एंगल ले रहे हैं हम। अब वो दो दो एंगल ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग, अब आप ध्यान देना, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान अच्छे से समझना कि करस्पॉन्डिंग का मतलब है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होगा, एक बाहर का और एक अंदर का, यानी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ लेंगे। लेकिन ध्यान देना है अभी, है ना, पता चला कि आप ये बाहर ये ले लो दोनों, ये नहीं। तो ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा, मैं मेंशन कर रहा हूं एंगल 5 एंड एंगल 3, इस तरीके से। तो देखो ये हमारा ट्रांसवर्सल था, ये ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ हो गए, एक हमारा लाइन के इधर है और एक लाइन के अंदर, मतलब ये बिटवीन हो गया इस तरीके से 5 और 3। तो यहां पे हमने लिख दिया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 5 एंड एंगल 3, ये एक पेयर हो गया। और कौन सा हो सकता है यहां पे, और ये भी हो सकता है हमारा, ये 6 और 4 भी हो सकता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो यहां पे हमने लिख दिया एंगल 4 एंड एंगल 6। और भी हो सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स बिल्कुल होंगे। कौन सा एंगल 1 एंड एंगल 7, और उसके बाद 2 और 8 भी हो जाएगा। तो ये हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया हमारा, एंगल 1 एंड एंगल 7, और लास्ट में है एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसमें क्या हो गया कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हमने लिए, एक हमने एंगल बाहर का लिया है तो दूसरा अंदर का, यानी दोनों एक ही तरफ होंगे। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हमने यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूं, 5 एंड 3 ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग हो गया एक, है ना। 6 एंड 4 ये दूसरा करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। 1 एंड 7 ये हमारे तीसरे करस्पॉन्डिंग पेयर्स हो गए, और 2 एंड 8 ये हमारे चौथे करस्पॉन्डिंग पेयर्स हो गए। तो इस तरीके से पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे हमारे बन जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं अगला वाला जो डिस्कस करते हैं। ठीक, अब क्या है हमारा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट का वर्ड मतलब वैसे बेसिकली देखा जाए तो बहुत सिंपल होता है ना, एक लाइन के इधर ले रहे हैं तो दूसरा लाइन के इधर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, दोनों वर्ड ध्यान देना है। एक तो अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट का मतलब हो गया ट्रांसवर्सल के एक अगर इधर लोगे तो दूसरा इधर लेना है आपको। ठीक, और इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब दोनों लाइनों के बीच में ही लेना है। एक इस ट्रांसवर्सल के आइदर साइड के एंगल लेना है, लेकिन एक जो है हमारा क्या करना है, इंटीरियर वाला लेना है और एक्सटीरियर। ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा क्या क्या थे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। यहाँ 4 है और इधर 8 है ना, यहाँ पे 3 है, ये 2 है
ये 1 है, ये 5 है, और ये जो है हमारा 6 है। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के आइदर साइड, दोनों एक इधर है तो दूसरा उधर, और इंटीरियर अंदर ही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 ट्रांसवर्सल के इधर है तो 4 उधर है। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक पेयर हो गया, कौन सा, एंगल 1 एंड एंगल 4, एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर क्या सा हो जाएगा, इंटीरियर की बात करना है ना, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो दूसरा पेयर हो गया हमारा एंगल 2 एंड एंगल 3। इस तरीके से ये दो पेयर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। अब याद रखना है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट ही है लेकिन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब लाइंस के बाहर, बाहर बोलने से ये देखिए 5 है तो 8 हो जाएगा, समझ गए है ना। तो यहां पर हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 8, इधर ये 6 और 7 हो जाएगा, तो एंगल 6 एंड एंगल 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में इस तरीके से डायग्राम आ जाए और उसमें से उनके नाम पूछ रहे तो कौन कौन से नाम है, तो अगर आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये नंबरिंग चेंज हो सकता है क्योंकि आप 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दोगे तो चेंज हो जाएगा, बट कंसेप्ट क्या है ये आपको समझना है। ठीक, हमारा लास्ट वन बचा हुआ है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल होना चाहिए हमारे लाइन के बीच में और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होने चाहिए। पेयर होना चाहिए दो एंगल्स, इंटीरियर मतलब लाइनों के बीच में, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही तरफ। तो कौन से एंगल है ये देखिए मेंशन कर रहा हूं, एक तो 1 है और एक 3 है, ये दोनों एक ही तरफ हो गए और इंटीरियर भी है, तो 1 एंड 3 हो गया इसका पेयर, और दूसरा 4 एंड 2। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एक तो एंगल 1 एंड एंगल 3 हो गया और दूसरा क्या है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 4। क्लियर है। तो इस तरीके से ये एंगल्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगे। वन मोर टॉपिक, ट्रांसवर्सल ऑफ ए पैरेलल लाइंस। In the previous one we already discussed angle made by the transversal, different एंगल्स थे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो गए हैं। कैसे हो गए, लाइंस पैरेलल से। इससे पहले में जो डायग्राम आपको बनाया था वो पैरेलल नहीं थे, है ना। तो अभी हमने क्या किया, पैरेलल लाइंस लेंगे तो फटाफट समझ जाए, बहुत आसान है, आसानी से। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, L और M, ठीक है ना। लाइन L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर्स, ठीक है। तो इसमें हमने एक ट्रांसवर्सल बना दिया, कैसे भी बना सकते हो, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अब ये एंगल है, हम इनके नाम दे देते हैं, नाम डिफरेंट दे देते, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब इसमें क्या हो गया, ये जो है हमारा थर्ड लाइन था, ये तो ट्रांसवर्सल हो गया, है ना। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब ये जो डिफरेंट एंगल्स है, जो 1 2 3 हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है, तुम्हें क्या रिलेशन होता है। पहले हमने सिर्फ ये समझा था कि कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर है। अब हम उनमें रिलेशन समझते हैं कि क्या है। तो अगर ये दोनों लाइन L और L पैरेलल हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ L पैरेलल M, ये पैरेलल का साइन है ना, देन इफ L पैरेलल M एंड, है ना, इसको भी अपन नाम दे सकते हैं P या फिर कोई भी दे सकते हैं, है ना, एंड लाइन P बी ए ट्रांसवर्सल, ओके, ठीक। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास देखो क्या थे कि ये जो थे ना अल्टरनेट इंटीरियर 4 एंड 6, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूंगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA।
समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 4 and 6, 3 and 5। तो ये इक्वल हो जाते हैं, 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। समझ में आ गया? मतलब हमने पिछली बार क्या बताया था कि एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थे। हमने क्या बता दिया, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये 4 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर है एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब हमारा दूसरा आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। तो क्या क्या हो जाएगा? 1 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, 2 and 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, और वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट हमारे पास पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट फॉर्म लिख देते, नहीं तो पता चला कि कंफ्यूज हो जाओ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? हमारे पास एक 1 और 5 है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 5 है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और कोई है इसके अलावा? और आप देख सकते हैं, देखिए 2 and 6 ये भी हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। और है कोई क्या? और भी है। तो देखिए एंगल 4 और एंगल 8 भी तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग है ना। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसी प्रकार हमारे पास एंगल 3 और एंगल 7 भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग है। तो वो भी मैं लिख देता हूं, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ऑल दीज आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर्स। क्लियर? और हमारे पास कौन सा था? करस्पॉन्डिंग हो गए, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए, है ना। और एक हमारे पास बच गया है कौन सा? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ। ठीक, तो ट्रांसवर्सल तो समझ में आ गया, है ना। पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब ये अंदर वाले एंगल्स है ना। कौन सा? ये वाला देखो, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, सेम साइड है। तो इसमें क्या होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, आप याद रखना। क्या है कि पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों एक ही तरफ हैं, तो उन एंगल को सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऑल्सो 180। तो इसी तरीके से हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, तो उनका सम जो है 180 हो जाएगा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो। ध्यान रखना इतना। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है ना कुछ रिलेशन आ गया है एंगल्स के बारे में। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने समझ लिया एक दूसरे के बराबर होते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम जो है ना वो 180 होता है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। this one is the diagram given in the textbook, so I draw here as it is, and these are the questions we have to give the answers. Okay, so state the property that is used in each of the following statement। यानी ये हमारे स्टेटमेंट है, इनमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसका नाम हमें लिखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सा होता है, तो अपन बताते हैं।
इफ ए पैरेलल बी, यानी कि देखिए ये लाइन ए है और लाइन बी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो 1 और 5 एक दूसरे के बराबर है। 1 कहां है हमारा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। तो ये कैसे टाइप के दिख रहे हैं एंगल 1 और 5? 1 हमारा बाहर है, ये हमारा अंदर है और दोनों एक ही तरफ है। तो जब दो एंगल एक बाहर और एक अंदर होता है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे ए और बी पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करें हम, प्रॉपर्टी हम यूज करें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो दिस प्रॉपर्टी वी विल यूज। क्लियर? नेक्स्ट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। 4 और 6 कहां है, देखिए मैं मेंशन करता हूं। ठीक है, 4 यहां पे है और 6 यहां पे है। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? 4 और 6 में क्या समझ में आ रहा है, एक ट्रांसवर्सल के इधर है तो दूसरा अपोजिट साइड में है और दोनों अंदर है, मतलब पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों, एक इधर है तो दूसरा उधर है। तो जब इधर उधर होते तो क्या होते हैं, अल्टरनेट, और लाइन के बीच में ही तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या हो गया ये, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमने बताया था कि अगर ये पैरेलल होते हैं तो दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो गया, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? थर्ड वन को ध्यान देते हैं अपन। ठीक, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो 180 वाला तो केवल एक ही था, आपको अगर याद आ रहा हो तो, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, वही तो था ना। ठीक, तो यहां पे देखेंगे 4 और 5 कहां है, 4, ये 4 है और ये 5 है। तो देखेंगे दोनों अंदर हैं और दो एंगल है तो पेयर तो होता ही होता है, और दोनों सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ है और दोनों अंदर है। तो क्या हो जाएगा, ये पेयर ऑफ एंगल्स है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं अपन इनको। इंटीरियर बोलने से अंदर है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की, पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर? तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हमने यहां पे यूटिलाइज की है, तो हमने उन प्रॉपर्टीज का नाम लिख दिया। 2, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये हमारा डायग्राम गिवन है, दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी एंड दिस ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड लाइन सी। इन्होंने ट्रांसवर्सल को सी लाइन दे दिया है और एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हमारे पास है। ठीक, आइडेंटिफाई करना है हमें ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि हमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है इसमें। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो पता ही है आपको, है ना, एक ही तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल के, एक बाहर होता है और एक अंदर होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 4 और एंगल 8 एक पेयर हो जाएगा, फिर एंगल 1 एंड एंगल 5 दूसरा पेयर हो जाएगा, एंगल 7 और एंगल 3 ये एक थर्ड पेयर हो जाएगा, वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 6 भी अनदर। तो यानी 4 पेयर हमें मिलेंगे। तो कौन सा रहेगा हमारे पास, ये लेते हैं अपन एंगल 4 एंड एंगल 8। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो इक्वल है या नहीं है, वो उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक, ये हो गया। फिर 1 एंड 5 एंगल 1 एंड एंगल 5, फिर 3 एंड 7 एंगल 3 एंड एंगल 7, फिर 2 एंड 6 तो एंगल 2 एंड एंगल 6। क्लियर? आसानी से समझ में आ गए। अब हम दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सेकंड वन,
पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब एक इधर होगा दूसरा उधर होगा, इंटीरियर का मतलब दोनों लाइनों के बीच में ही होंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, यानी ये 3 और 5 हो गया, 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर हो गया, दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8, सॉरी हियर इज 8 है ना, मैं 6 नहीं 8 है। अगर आप कहीं मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग भी, आप अपने से करेक्ट कर लेंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है हम बोल कुछ और रहे हैं लिख और जाते हैं, तो प्लीज अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे अपने आप से, और अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट में हमको बता दीजिए, तो हम उस चीज के लिए हो सकता है हम किसी को उसको क्लियर भी कर सकें। ओके, ठीक। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर है मतलब लाइनों के अंदर ही होंगे, है ना। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तो इसमें कौन सा पेयर आ जाएगा, देखो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होना है और लाइनों के बीच में ही होना है। तो हमारे पास 3 और 8 एक ही तरफ है, लाइनों के बीच में भी है, तो क्या हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। ओके, दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर है इधर 5 एंड 2, ठीक। तो एंगल 2 एंड एंगल 5, तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा पेयर भी हो गया, है ना। अब हमारा ये जो है लास्ट वन बचा है, वो भी बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट, ये हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट में ध्यान देंगे, देखिए ये 8 और 6 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, वैसे ही 5 और 7 भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 2 वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, 1 एंड 3 वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया एंगल 1 एंड एंगल 3, एक तो ये हो गया अपना एंगल 2 एंड एंगल 4, एक पेयर ये हो गया, और 5 एंड 7, तो एंगल 5 एंड एंगल 7 ये वर्टिकली अपोजिट है, 6 एंड 8 एंगल 6 एंड एंगल 8। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q, यानी कि हमारे पास जो P और Q है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो एक P हो जाएगा और एक Q हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, P Q किसी को भी दे देंगे, है ना। फाइंड द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स का मतलब है A B C D E F, इनका वैल्यूज फाइंड आउट हमें करना है, क्या होगा, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू गिवन है, इसकी हेल्प से हमें बताना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, बहुत सारे एंगल्स अपन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर अपन देखेंगे प्रीवियस एक्सरसाइज का कंसेप्ट भी यूज होगा, प्रीवियस एक्सरसाइज में पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स थे, एडजेसेंट एंगल थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स थे, वो कंसेप्ट भी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, E प्लस एफ, E प्लस 125, दोनों देखेंगे तो सीधा लाइन बन रहा है ना। तो E एंड 125 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, एंगल E प्लस 125 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है दोनों को मिलके। E प्लस 125 को प्लस करेंगे तो पूरा एक सीधा लाइन बन रहा है, तो इससे हमने क्या करेंगे E का वैल्यू, तो E कैसे निकल जाएगा 180, 125 को यहां ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना मिला हमें E का वैल्यू 10 माइनस 5 7 बचेगा, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो 55 डिग्री आ गया हमारा, ठीक। एंगल E हमारा आ गया 55 डिग्री, दिस इज द एंगल E, तो एक पता चल गया। और E और F आप देख रहे होंगे दोनों वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है, E एंड F आर लुकिंग लाइक अ वर्टिकल अपोजिट, मतलब वो वर्टिकल अपोजिट हो गए, तो जो E का वैल्यू है वही F का वैल्यू हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल F इज इक्वल टू E, या एंगल का साइन भी लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे एंगल F और एंगल E सब जगह एंगल यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इससे। एंगल F और एंगल E क्या है, बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, दैट इज जो एंगल ई का वैल्यू है वही एंगल एफ का वैल्यू हो जाएगा। ई का वैल्यू 55 है तो एंगल एफ भी 55 आ जाएगा, क्यों कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, तो अब देखो एफ और आपके पास क्या मिल गया, ई, ये दोनों मिले। अब एक चीज ध्यान दो यहां पे, अब देख रहे होंगे तो ये दोनों तो पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एक ही तरफ होते हैं, एक बाहर एक अंदर है, तो ये एफ जो डी एंड 125 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल डी इज इक्वल टू 125, तो क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया हमारा। अब हमको डी भी मिल गया। ठीक, अब डी के बाद हम क्या कर सकते हैं, डी और बी क्या है, वर्टिकल अपोजिट है ना, डी और बी वर्टिकल अपोजिट है ना, तो उसको लिख देते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो एंगल दैट इज एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो एंगल डी है वही बी हो जाएगा, तो यानी 125 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। यानी हमारे पास देखो ई आ गया और ये एफ आ गया और यहां पे हमारे पास डी आ गया और ये जो है हमारे पास बी आ गया। अब क्या क्या बचा है, ए और सी। ठीक है ना, तो आप कई सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो तरीका यूज करूं आप भी यूज करो, बहुत सारे तरीके एंगल्स फाइंड आउट करने के, आप हो सकता है डिफरेंट मेथड यूज कर ले, कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे, अब यहां पे आप ध्यान देंगे तो एफ और सी, एफ और सी कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, एक बाहर हो गया एक अंदर हो गया, एक ही तरफ है, एफ एंड सी आर करस्पॉन्डिंग, या फिर चलो एफ और सी करस्पॉन्डिंग नहीं कर रहे हो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो है एफ और ए अल्टरनेट इंटीरियर तो है कि नहीं है, एफ और ए अल्टरनेट है, तो जो एक एफ का वैल्यू वही ए का वैल्यू हो जाएगा, तो हम ये भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं मैं, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज, तो एंगल ए का वैल्यू वही होगा जो एंगल एफ का वैल्यू है, एंगल एफ कितना है 55, तो हमारा ए भी जो है 55 डिग्री हो गया, मिल गया ये। अब देखोगे ए एंड डी, सॉरी ए एंड सी, ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, तो ए एंड सी वर्टिकली अपोजिट है तो वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल सी का वही वैल्यू हो जाएगा जो एंगल ए का है, ए 55 है तो सी भी 55 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे एंगल्स हमें पता चल गया, सारे अननोन्स का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप चाहो तो पहले आप डी का वैल्यू निकाल लो, पहले ई का निकाल लो, एफ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी आए। देखो एक कंसेप्ट है, आप चाहो पहले बी का वैल्यू भी निकल सकता है, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो देयर इज मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट आई चूज हियर वेरी इजी वे। अंदाज है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल m, यानी कि इन्होंने कहा कि अगर l और m पैरेलल हैं तो x का वैल्यू निकालो दोनों केसेस में। तो l और m पैरेलल हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, है ना, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल हमें x निकालना है। तो x का और 100 का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ भी नहीं बैठ रहा है, ना तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, ना दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ना दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक एंगल ले लेते हैं, ये एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको 1 ले लिया, अपने मन से सपोज कर लिया है। अब अगर एंगल 1 ले लेते तो क्या हो जाएगा, 100 और एंगल 1 मिलके हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा, यानी सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये यहां से एंगल 1 निकाल देंगे, पहले एंगल 1 निकालेंगे,
1 और x अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, तो जो 1 का वैल्यू निकलेगा वही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? सो हियर एंगल 1 प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180। वाई दोनों का सम 180 है? बिकॉज लीनियर पेयर, वो क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 निकालेंगे यहां से, तो हमारे पास ये 180 100 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस हो गया, और एंगल 1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 80 डिग्री। एंगल 1 आ गया 80। अब एंगल 1 और x दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हैं, क्योंकि एक इधर है एक दूसरा उधर है। तो अब क्या कर देंगे? नाउ एंगल x इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गया ना? तो जो 1 का वैल्यू होगा वही x हो जाएगा, दैट इज एंगल x इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया? 80 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हमने इस केस में एंगल x फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो है एंगल डायग्राम 2 में हम देखते हैं। तो डायग्राम 2 में देखिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है, यानी इस 80 का हमारा ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए हम अगर चाहें तो, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए भी दिया रहता है कभी कभी क्वेश्चंस में, तो यहां पे ध्यान देना, ये L और AM ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? ना? अगर मैं इस पोर्शन को इतना हटा दूं, सपोज मान लो ये वाला B लाइन हटा दूं, मैं B लाइन हटा दूं, तो आपको क्या दिख रहा है? L और M पैरेलल है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ट्रांसवर्सल होगा तो 100 और x कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं, तो डायरेक्ट हमारा x का वैल्यू 100 आ जा रहा है। तो ये सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि यहाँ पे आप कंफ्यूजन है, समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना? इसके क्वेश्चन में इफ L पैरेलल M, है ना, देन, है ना, देन A लाइन A, ऐसा लिख देते हैं ना, देन लाइन A विल बी ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे तो हमारे, है ना, दैट इज एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों हो गया 100 डिग्री? है ना, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? तो इस तरीके से x का वैल्यू डायरेक्ट 100 हमारे पास आ गया, इनकी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये आसानी से क्वेश्चन समझ में हमारा आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स, पहले तो मैं आर्म्स के बारे में बता दूंगा, हालांकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। आप पहले वीडियोस आप देखेंगे शुरुआत में, तो आपको आर्म्स के बारे में पता चल जाएगा कि आर्म्स क्या होते हैं। इफ एंगल ABC 70 डिग्री देन फाइंड, ये दोनों एंगल्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो यानी कि कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अच्छे से, ये एंगल ABC है, एंगल ABC, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल बन रहा है वो B के ऊपर बनेगा, और A और C जो है वो उसकी आर्म्स हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? AB और BC ये आर्म्स हो जाएगी। जैसे कोई भी एंगल हम बनाते हैं, जैसे ये एंगल बना है हमारा, तो इसका नाम दे देंगे हम PQR। तो ये एक तो हो गया PQ और एक हो गया PR, ये होगा इसके आर्म्स। आर्म्स मतलब जिनको मिलके ये एंगल बन रहा है, ठीक है? और ये होता है एंगल। तो जिस पॉइंट पर यानी जो एंगल होता है उसको हम बीच में लिखेंगे, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? QPR या फिर RPQ, समझ गए? तो जिस पॉइंट पर हम एंगल कंसीडर करते हैं वो पॉइंट हमारा मिडिल में होना है। तो इस तरीके से यहां पे जो एंगल ABC दिया था, इसका मतलब ये हो गया कि जो मिडिल पॉइंट है वो है B, तो यहां पे देखिए B के ऊपर एंगल बन गया, और A और C उसके आर्म्स हो गए, यानी कि AB और BC, ठीक है ना? ये इस एंगल के आर्म्स हो गए। दूसरा एंगल कौन सा है? DEF, एंगल दूसरा कौन सा है? DEF। तो ये एंगल कहां पे है? E के ऊपर एंगल होगा, होगा ना E के ऊपर, और
ये डीई और एफ क्या हो जाएंगे, आर्म्स, यानी कि ईडी और ईएफ ये इसके आर्म्स हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आर्म्स ऑफ दिस एंगल्स आर पैरेलल, मतलब ये बीए और ईडी पैरेलल है एक दूसरे के, है ना। आर्म्स ऑफ पैरेलल मींस बीए पैरेलल ईडी एंड बीसी पैरेलल ईएफ, इसका मतलब ए हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में गिवन था ना कि आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल, मतलब ये हो गया हमारे पास बीए ईडी के पैरेलल है। बीए का मतलब मैं आप थोड़ा बना के बता देता हूं, बीए यानी कि ये वाला लाइन हो गया, ईडी का मतलब ये लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। बीसी का मतलब ये लाइन हो गया और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो हमें एंगल बताना है, कौन सा एंगल बताना है, डीजीसी। डीजीसी कहां है, ये वाला जी पॉइंट हो जाएगा हमारा, है ना, इसको जी पॉइंट दे देते बीच में। तो डीजीसी यानी ये एंगल निकालना है हमें। तो एक चीज बताओ, बीए और ये ईडी, ईडी पैरेलल है ना, बीए एंड ईडी पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देते हैं अपन यहाँ पे, है ना, इफ बीए पैरेलल ईडी देन BC will be a transversal। तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है DGC, इसको हम चाहे तो 1 दे सकते हैं, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, है ना। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 70। तो ये हो गए हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो अब एंगल 1 ही तो हमारा डीजीसी है ना, तो दैट इज करके लिख सकते हैं, और एंगल डीजीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना, बिकॉज एंगल डीजीसी इज इक्वल टू एंगल 1, दोनों सेम है ना। बात समझ में नहीं आई, तो इसलिए हमारे पास डीजीसी कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, डीजीसी जो है ना हमारा 70 डिग्री आ गया। अब दूसरा एंगल कौन सा है, डीईएफ। तो इसके लिए भी हमें यही चीज यूज करना पड़ेगा। तो देखेंगे इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यही चीज अपन लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, BC इफ BC पैरेलल EF then, है ना, BC पैरेलल EF then ED will be the transversal, है ना, then ED will be the transversal, है ना, will be the transversal। ठीक, अब वो ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 तो ऑलरेडी निकाल चुके 70 डिग्री, तो एंगल 2 भी 70 हो जाएगा। दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। और एंगल 2 का मतलब क्या हो रहा है, जीईसी या फिर डीईएफ, डीईएफ एंगल 2 ही तो हमारे पास है ना, ये देखो, ये देखो, है ना, डीईएफ, ये पूरा एंगल बन रहा है। तो दैट इज एंगल डीईएफ कितना हो गया हमारे पास, ये 70 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल हमारे पास आ गए दोनों, 70 डिग्री एंगल बन के। तो बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है, बेसिक कंसेप्ट यूटिलाइज होता है इसमें, है ना, आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो डायग्राम्स गिवन है इस पे, तो L और M पैरेलल है या नहीं, इसको चेक करके बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है।
इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, यानी कि एल जो है पैरेलल है या नहीं, आपको ये बताना है। तो दो पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि उनके जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है उनका सम 180 हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर है तो वो लाइन पैरेलल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर है तो वो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम 180 आ जाए तो भी पैरेलल हो जाते हैं। तो हम इनमें से कोई सा भी चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हम क्या यूज कर लेंगे, ये दोनों एक ही तरफ दिए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका सम करके देख लेते हैं। अगर सम 180 आ जाएगा तो एल पैरेलल एम है, और सम अगर 180 नहीं आया तो नहीं, ठीक। सो लेट्स चेक 126 प्लस 44, ठीक है, 4 और 6 10 कैरी 1, 4 और 6 7 1, 170 आया। यानी कि ये हमारे पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, ये दोनों दिख रहे हैं ना सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन इनका सम 180 नहीं आया। यहां पे हमको 180 चाहिए, अगर ये 180 होता तो ये पैरेलल हो जाते, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट पैरेलल, है ना। एल इज नॉट पैरेलल हियर, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है। एल और एम पैरेलल नहीं है, डज नॉट पैरेलल्स, ठीक। सेकंड वाला चेक करते हैं, ये देखेंगे तो ये देखिए यहां पे ये एंगल 75 है, तो इसके साथ में ये एंगल भी 75 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट तो 75 हो जाएगा। और अब ये जो दोनों एंगल है ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया ना, ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, क्या 75 और 75 तो 150 होता है, 180 नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150। तो यहां पे वही लिख देंगे, हियर एल इज नॉट पैरेलल टू एम, यहां पे भी पैरेलल नहीं है। समझ में आया ना, ये दोनों 75 कौन सा लिया है, ये वाला 75 है ना, ये और ये इन दोनों को सम किए है ना, ये दोनों सेम साइड है ना, तो ये तो हमने वर्टिकली अपोजिट लिया था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 180 नहीं आया है ना, ये भी देखो 150 है, इसलिए यहाँ पे भी पैरेलल नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे देख लो, चेक कर लेते हैं अपन, तो सेम हियर ये 57 है, तो यहाँ पे ये भी 57 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो दोनों सेम साइड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, 123 प्लस 57 इज इक्वल टू 7 और 3 10 कैरी 1, 5 और 2 7 और कैरी वाला 8 और 1 180, यहाँ पे आ गया 180, है ना। ये देखिए एग्जैक्टली 180 आ गया, है ना। पहले तो हमने क्या किया, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है तो ये हमने 57 निकाल दिया, फिर ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल बन गए तो इनका सम करके देख लिया, सम करके देखा तो ये 180 आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, यस, यहाँ पे लिख देंगे यस एल पैरेलल एम, इसमें पैरेलल है, ठीक है। फोर्थ वन चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी कुछ इस तरीके से ही चेक करेंगे। तो देखिए ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, उसके बाद ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल चेक कर लेते हैं 180 है या नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 72 प्लस 98, 8 और 2 10 कैरी 1 9 6 17 हो रहा है ये, है ना। तो ये भी 180 नहीं आया, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे भी पैरेलल नहीं होंगे, समझ गए। तो क्योंकि यहाँ पे जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो दो एंगल हैं, है ना, हमने बेसिक कंसेप्ट में भी बताया था कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो सेम साइड के जो एंगल है ट्रांसवर्सल के, उसका सम 180 ही होता है। तो यहाँ पे हम वही चेक करके देख रहे हैं कि सब में 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 180 नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, नहीं है पैरेलल। अगर आता तो हम बोल देते पैरेलल। यहाँ पे देखो यहाँ 180 आया तो पैरेलल है, इंद्र में 180 नहीं आ रहा है तो पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो हियर L is not parallel to M, तो L और M पैरेलल नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए, हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो गया और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा
और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हमारे टीचिंग मेथड्स आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी एक अच्छे वीडियोस को देख के अपनी स्टडी को कंफर्म स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू वेरी मच।